Hello and welcome everyone. In this particular video, I'll be talking of very important topic, that is topic number 4.10, projectile motion. As far as this topic is concerned, it is very lengthy topic. So what I'll be doing is I'll be discussing this in terms of 3 to 4 questions in this particular video itself. And as far as the importance of this particular topic is concerned, you will find at least one question in each and every examinations of yours in which this chapter is a part of. Okay, so let's discuss the very first question. In the very first question, they might ask you, हालांकि अगर जैसे ये क्वेश्चन की बातें करेंगे तो it is not that much important, but the content of this question is to be wrote in each of the following 3 questions that I'll be discussing. मैं बोलूंगा आपको क्या करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन की मतलब द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सीखने वाले हैं उस हर एक क्वेश्चन के अंदर इसका थोड़ा कंटेंट हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डालेंगे. दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि कितना कंटेंट आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है ये क्वेश्चन में से. राइट, ओके. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी एज इफ मतलब एज लाइक define projectile motion, also state what is the meaning of projectile and derive the equations of motion for projectile motion. So yeah, firstly definition. As far as definition of projectile motion is concerned, you can give the definition like whenever a body is thrown in the gravitational field of earth, किसी भी body को अगर हम earth के gravitational field के अंदर फेंकेंगे, then we'll find that it moves with constant horizontal velocity. हम देखेंगे कि वो constant horizontal velocity से move करता है और constant vertical acceleration. That is, whenever a body is thrown in the gravitational field of earth, it moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. Such a two-dimension motion you can see. Yeah, horizontal में velocity constant होती है, मतलब horizontal में भी motion है, vertical में भी that motion है. So you can say such a two-dimensional motion of a body is known as projectile motion. And the body which we are talking of, which is performing the projectile motion, is known as projectile. फिर से एक बार फटाफट से, whenever a body is thrown in the gravitational field of earth, it moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. Such a two-dimensional motion of the body is known as projectile motion, and the body which is performing this particular motion, that is known as projectile. Okay, you can also give the examples of projectile motion as if whenever a cricketer ball is striking a cricket ball, then that cricket ball is मतलब कभी हालांकि आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि the path of that particular ball is like this way when it is a मतलब six कोई भी प्लेयर अगर उसको फेंकता है तब भी आप ये देखोगे कि भाई वो उसका जो पाथ होता है दैट द पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट्स समवॉट लाइक पैराबोलिक. सच मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. हालांकि आपको आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, नो मैटर. हालांकि आप ये जरूर बोल पाओगे कि भाई ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, सो उसका एक्सेलरेशन तो ड्यू टू ग्रेविटी ही है. बट डोंट गेट कंफ्यूज, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, मैं जो एग्जांपल दे रहा था. फिर से एक बार, यू कैन आल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ अ फुटबॉल व्हिच इज किक्ड, राइट. whenever you are kicking a football, the path of that football is also a projectile motion, and so many examples. अच्छा, furthermore, in this particular question we'll be discussing about the equations of motion also. Equation of motion, देखिए, as far as equation of motion is concerned, in the particular chapter number 4, you have already learned this thing, that which are the equations of motion under under the effect of constant acceleration, right. When the acceleration is constant, you must be knowing these two equations. Vector v is equal to v0 plus at, right. This is the very first equation, and the second equation is of the displacement. R minus R0 is equal to V0t plus 1/2 at square. Wherever there is a vector, put the vector. These are nothing but the important equations of motion
motion in a plane, yeah, which you might be well aware of. हालांकि हम जो यूटिलाइज करने वाला है, the things, the equations that we are supposed to utilize are the components equations. मतलब अगर यही इक्वेशन को x और y कंपोनेंट के टर्म्स पे लिखेंगे, पहले इक्वेशन को, कोई सोचेगा सर तीसरे इक्वेशन की बात नहीं करते? हाँ, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट में चला जाता है. यू डोंट थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर थर्ड इक्वेशन. हालांकि अभी फिलहाल आप ये दो इक्वेशन पे ही फोकस करो. फोकस ऑन दिस टू इक्वेशन ओनली प्रेजेंटली. सो फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट कैन बी रिटन लाइक दिस वे. भाई जो भी वेक्टर होता है उसको हम कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट डाउन दिस एंटायर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x कंपोनेंट, लाइक vx इज इक्वल टू v0x प्लस axt. जहां जहां वेक्टर था वहीं पे मैंने कंपोनेंट्स रखे हैं. दैट्स अ टेक्निक यू माइट बी अवेयर ऑफ. ऐसे ही vy इज इक्वल टू v0y प्लस ayt. इन द सेम मैनर दिस इक्वेशन कैन बी आल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स. कैसे? देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है. सो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस वे, x minus x0 at final position, initial position in x coordinate, मतलब in x direction. वेक्टर v0 है, मतलब v0 x t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर. आप शांति से देखोगे निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा, कुछ मतलब नया नहीं करा है मैंने. इन द सेम मैनर y कंपोनेंट y minus y0 is equal to v0 y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर. अगर आपको ये चार इक्वेशन आते हैं, राइट, जो आने ही चाहिए, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ मतलब दिस टॉपिक इज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रीवियस टॉपिक व्हिच यू माइट हैव ऑलरेडी लर्न. सो इसी के बेसिस पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे. सो लुक एट दिस. मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप फेंकते हैं ओरिजिन से. यू आर थ्रोइंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन सच दैट इट इज थ्रोन, मतलब कहां पे हम फेंकते हैं? इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. तो हम ये देख पाएंगे कि जो ये पाथ लेता है ना वो ऐसा लेगा, राइट. let me clarify it more, right. Initially the particle was here, we are giving, मतलब we are throwing it, मतलब हमको इनिशियली वेलोसिटी देनी पड़ेगी. तो हम जो वेलोसिटी देते हैं भाई, ये प्रोजेक्टाइल है अपने लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है. सो द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच वी आर गिविंग, मतलब विद व्हिच वी आर थ्रोइंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल इज v0. और आप अच्छे से जानते होंगे, राइट, पाथ ऑफ मोशन पे वेलोसिटी इंडिकेट करनी हो तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब सॉरी पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो यहाँ पे पार्टिकल उस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा ऐसा, राइट. सॉरी, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस वे. Let us say this is the initial velocity vector. This initial velocity vector is making angle, मान लीजिए θ0 एंगल बना रहा है. It's just an example. Now you can take two components. भाई ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस टॉपिक्स है, कंपोनेंट्स कैसे लिखने हैं वो भी आने चाहिए. अगर ये v0 है, ये θ0 है, the component which is angle, मतलब which is making angle is always cos component. So you can write like this way, v0 cos θ0. In the same manner you can also write down, मतलब when it is projected towards the y axis, right, xy axis है, origin से शुरू करते हैं हम लोग. सो अगर ये कंपोनेंट की बातें करेंगे हम वेलोसिटी के, सो इट विल बी v0 sin θ0, राइट. फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारी की सारी बातें परफेक्टली लिखी हुई है वो स्क्रीन पे, बाद में लिख लेना. मैं बोलूंगा कब लिखना है आपको, फिलहाल आपको सिर्फ फोकस करना है. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो क्या है? सिंस वी आर टॉकिंग इन दी, मतलब वी आर टॉकिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटी जितना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी. सो ए इज इक्वल टू, इट इज g, बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ डायरेक्शन, भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब अर्थ की तरफ होता है वो. सो व्हेन यू आर राइटिंग वेक्टर साइन, सो ऊपर है प्लस y तो नीचे माइनस y, और माइनस y को इंडिकेट करता हुआ यूनिट वेक्टर j कैरेट. सो यू मस्ट बी नोइंग दिस वे, इट्स माइनस j कैरेट. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
इज माइनस जे कैरेट। वेरी मच क्लियर होना चाहिए, ये एक्सलेशन नीचे की तरफ होता है, राइट। चलिए अब थोड़ा थोड़ा इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ दी क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख देता हूं। देखिए मैंने शुरू कहां से करा था, हम लोगों ने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका, कहां से था, ओरिजिन से। सो ओरिजिन से फेंका मतलब इनिशियली वो यहां पे था। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, देखिए इनिशियल कोऑर्डिनेट्स मतलब x0 y0, सो यू कैन से x0 is equal to 0, y0 is also 0। बी केयरफुल मैं क्या लिख रहा हूं, राइट, बहुत आसान है। और वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ये, सो वी कैन से v0x। भाई v0x क्या लिख पाएंगे हम लोग, v0 cos थीटा 0। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या लिख पाएंगे हम लोग, v0y, मतलब ऑन द y एक्सिस, दैट इज v0 sin थीटा 0, राइट। फर्दरमोर एक्सेलरेशन पे ध्यान से फोकस करिए। इफ आई आस्क यू, भाई डेफिनेटली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू माइट, मतलब यू विल बी नीडिंग, आपको क्या चीजें चाहिएगी, ax और ay दोनों चाहिएगी। सो हाउ विल यू राइट डाउन ax एंड ay। स्क्रीन पॉज करिए और अपने आप सोचिए कि ये क्या लिखोगे, राइट। नाउ प्ले ax, भाई x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। दिस इज एंटायरली द केस ऑफ कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। डेफिनेशन याद करिए, एंड दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड ओनली। सो x में तो है ही नहीं, so we won't be having the component of acceleration in the x direction। simple, ax 0 है, ay कितना है भाई, you can see y कंपोनेंट क्या है भाई उसका, मतलब y डायरेक्शन में, भाई y डायरेक्शन में तो वैल्यू क्या है, -g। अगर इतनी चीजें आप अच्छे से लिख पाओगे, you will be definitely able to write down these 4 equations which are nothing but the equation of motion for projectile motion। शुरू करिए, देखिए फर्स्ट पार्ट, राइट, यहां से शुरू करिए। x माइनस x0 इज इक्वल टू v0 x t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये वाले इक्वेशन से, मतलब ये वाले इक्वेशन के अंदर विच इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं ये सारा डेटा रख दूंगा। सो वी कैन से x माइनस x0, भाई x0 कितना है 0, इज इक्वल टू v0 x, भाई वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वी कैन राइट आउट लाइक दिस वे, v0 cos थीटा 0, v0x into t, be careful of each and everything, plus 1/2 ax t square। लेकिन ax तो 0 है, एक्सप्रेशन का x कंपोनेंट तो है ही नहीं, मतलब ये टर्म आएगी ही नहीं। सो यू विल, मतलब प्लस 0, सो यू विल डायरेक्टली गेटिंग the x coordinate as v0x, v0 cos theta 0 into t। very simple। let us say this is the first equation। in the same manner you can easily obtain the y coordinate also। so y minus y0 क्या है भाई, again initial coordinate 0 है, v0y, so it is v0 sin theta 0 into t plus 1/2 ay क्या है -g into t square। सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, तो v0 sin theta 0 into t minus 1/2 gt square। बहुत आसान। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड, वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी का x कंपोनेंट टू बी वेरी प्रिसाइज। भाई vx क्या लिख पाएंगे, v0x प्लस axt। अभी ax तो 0 ही है, मतलब वो टर्म तो आएगी, डायरेक्टली v0x ही रहेगा। और v0x की वैल्यू क्या है, v0 cos थीटा 0। देखिए मैं फील कराऊंगा, सॉरी, पूरी की पूरी बातें फील कराऊंगा मैं। देखिए vx is equal to v0 cos theta 0, let us say this is third equation, and vy is equal to v0y plus ay into t। v0y क्या है भाई, v0 sin theta 0 plus ay is minus g into t। सिंप्लीफाई करेंगे तो v0 sin theta 0 minus gt। this is the fourth equation। very simple to understand, right। अब शांति से समझिए, फिर से आपको ले जा रहा हूं मैं डेफिनेशन पे, समझना ध्यान से, थोड़ा फील करवाने के लिए। What I have mentioned, अगर आप बहुत ध्यान से फोकस करोगे, मतलब सोचिए, शांत दिमाग से सोचिए, मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स whenever an object is thrown in the gravitational field of Earth, it moves with constant horizontal velocity। ध्यान से, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए हमने वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से फेंका था, वेक्टर v0, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v0 cos थीटा 0।
क्या ये उसके मोशन के दौरान हर एक टाइम पे सेम रहेगा? हाउ टू टेक सच जजमेंट, मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे दिस पर्टिकुलर थिंग इज कांस्टेंट और नॉट? व्हेन कैन यू से दिस पर्टिकुलर थिंग इज चेंजिंग? कब आप बोलोगे? जब उसके अंदर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वेरिएबल आता हो जो मतलब जो समय के साथ बदलता हो, या तो फिर अगर वो पर्टिकुलर इक्वेशन में टाइम टी आता है तो आप जजमेंट ले सकते हो, नहीं भाई सर ये तो बदल रहा है। देखिए आप वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देखिए, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, लुक v0x is equal to v0 cos theta 0। उसमें जब हमने x डायरेक्शन में वेलोसिटी ढूंढी थी, देखिए x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या मिली थी? vx is equal to v0 cos theta 0। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए उसके पाथ के ऊपर का, मान लीजिए आप यही मतलब यहां पे पहुंच गए और यहां पे चर्चा करनी थी, फिलहाल आप चर्चा कर रहे थे ओरिजिन की, बट मान लीजिए आप यहां पे हैं, अगर आप यहां पे हैं और आपको कोई पूछ ले भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी यहां पे, आप तुरंत बोल सकते हो इट्स ऑलवेज दिस मच v0 cos theta 0। व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम ही रहती है, ऑलवेज इट इज सेम। हाउ मच? v0 cos theta 0। दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए भाई। हाँ, वर्टिकली जो कंपोनेंट होता है ना, मतलब पहले कंपोनेंट क्या था? v0 sin theta 0। वो समय के साथ घटता जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फिर बाद में जाके नीचे जाके बढ़ेगा, वो सब बातें मैं बाद में करूंगा, बट आई एम टॉकिंग ऑफ जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी। अब डेफिनेशन पे फिर से जाइए। दूसरी बात क्या बोली थी? कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कांस्टेंट होना चाहिए। देख लीजिए एक्स डायरेक्शन में तो मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, और जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो तो सिर्फ -g है, और आप जानते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? वी आर टॉकिंग नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, सो नियर बाय सरफेस ऑफ अर्थ इट्स 9.8। सो अब फील आनी चाहिए कि अगर आप यही पॉइंट पे बात करोगे, अगर मैं आपको पूछ लूं व्हाट इज एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, आप इमीडिएटली बोल सकते हो सर इट इज -g एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए वंस वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। होप सो सारी बातें क्लियर है, राइट? ये चार इक्वेशन को हम quite often, मतलब in the coming next theory we will be using it। so आपको वो कंटेंट, मतलब ये जो मैंने समझाया वो पूरा, वो मैंने वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, so I'm taking you towards that particular screen। okay students, you can see the question which I have written: define projectile motion and projectile, also give the examples of projectile motion and derive the equations of motion for projectile motion। राइट? बहुत सारा मोशन हो गया, बट एनीवेज जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख देना। मतलब इनिशियली देख सकते हो आप, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखी है, बाद में प्रोजेक्टाइल के बारे में लिखा है, एग्जांपल्स लिखा है, और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने डिटेल में सारी की सारी बातें लिखी हुई है, राइट? सो अंत तक इक्वेशन नंबर 6 लिखा है ना, वहां तक लिखना है। अभी 2 इक्वेशंस बाकी है, वो 2 इक्वेशंस लेफ्ट स्क्रीन पे है, मैं वहीं पे फोकस कर रहा हूँ। चलिए ओके, फाइनली आपको ये जो राइट साइड मैंने सिर्फ लिखा है ना, जो राइट साइड, जस्ट राइट साइड, वो ही लिखना है। मतलब 7th इक्वेशन एंड 8th इक्वेशन अप टू इक्वेशन नंबर 8 यू आर सपोज टू राइट इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। या चलिए ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द very first important question, right? I have told that I will be talking in this particular topic in 3 to 4 questions. The very first question I have talked of, but that won't be asked, to be very frank. So first important question, that is, they might ask you such kind of question that define projectile motion and also obtain the equation of trajectory of a projectile, right? ट्रेजेक्टरी मीन्स द पाथ टेकन। अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब द प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल होता है, द पाथ दैट इज टेकन बाय इट इज समवॉट लाइक दिस, एंड यू माइट से सर दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज ऑफ पैराबोला ना, या दैट ग्राफ इज पैराबोला, मतलब पैराबोलिक इन नेचर, बट यू हैव टू प्रूव, you have to indirectly obtain that equation. So how shall we do it? So first of all, you are supposed to write down the
necessary things. First of all, you are supposed to define the projectile motion. What do you mean by projectile motion? Whenever an object is thrown in the gravitational field of the earth, it moves this constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. Such two-dimensional motion of the body is known as projectile motion. Then what we have already discussed, the 4 equations of motion, but now you are supposed to write down in very short, जो मैंने ऑलरेडी वहां पे लिखा है, लेकिन मैं फटाफट से बोल देता हूं. देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब फिलहाल अपना प्रोजेक्टाइल जो हम ओरिजिन से प्रोजेक्ट करते हैं विद अ वेलोसिटी v0, with a velocity v0, right? Definitely the path taken by it will be like this way, right? ऐसे पाथ लेके वो वापस ग्राउंड पे गिरेगा कहीं दूर. अच्छा, so I have also talked of this x component, which if this is theta 0, right? Origin x, y, these are the simple thing that we have already learned. So I am going very fast. v0 cos theta 0 and the v0 y component will be v0 sin theta 0. So from the figure it is very clear that x0 is equal to 0, y0 is equal to 0, v0x is equal to v0 cos theta 0, v0y is equal to v0 sin theta 0. Acceleration due to gravity, which we have taken over here, vector A, which is in downward direction. We are very much aware of it. This is minus g j caret. That's why we have also talked of its components. Ax is equal to 0 and ay is equal to minus g. Right? मेरे हिसाब से ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में. So using that things, what we have done, we have obtained 4 equations of motion for such parabolic motion. कौन से 4? First, एक दो बार आप लिखोगे ना, मतलब the more you will write this particular theory, you will definitely write it by your own, as if I am writing right now, sorry. So x is equal to, very first equation, if you will take x minus x0 is equal to v0x, मतलब x minus x0 is equal to v0 t plus 1 half at square. That's what you have to think in your mind. You will definitely get the answer. So yeah, x is equal to v0 cos theta 0 into t plus 1 half ax, but ax is 0. So this is the very first equation. Do cross check it, right? Secondly, y minus y0. y0 is 0, so when you will do it, you will get the answer like this way. v0 sin theta 0 into t minus 1 half gt square. ये मैंने सिखा लिया है अभी के टॉपिक में. We have also talked of vx and vy. We have obtained vx which was constant throughout, which is constant throughout the projectile motion, which is v0 cos theta 0. इसमें टाइम वाइम नहीं आता, इसलिए चाहे कोई भी टाइम हो, it will remain forever constant. Fourth equation, that's v0 sin theta 0 minus gt. Fourth equation. हालांकि presently in the very first question we won't be using these two equations, but the manner which I am writing, मतलब ये आदत अच्छी है कि आप हर बार प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर लिखिए as shown in figure, consider a projectile projected from the origin with a velocity v0 making angle theta 0 with x axis, right? Then it's very clear कि x0 y0 v0x v0y ax ay सारी की सारी बातें लिख दीजिए and then write down. Now according to the equations of motion we can write down these 4 equations. ये 4 equation बेस है, बेस. ये 4 equation को ही घुमाना है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस में, प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चंस में. अब देखिए, फर्स्ट थिंग यू माइट बी थिंकिंग, सर ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लेट मी मेक इट क्लियर. इफ आई आस्क यू, दिस इज द इक्वेशन बिटवीन विच टू वेरिएबल्स? लुक, x and t, because v0 is constant, theta 0 is constant. ये वाला इक्वेशन y और t के बीच में है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है. ये वाला इक्वेशन vx, मतलब हालांकि इसमें तो सिर्फ vx है जो कि कांस्टेंट है, मतलब दिस इज द एंटायरली कांस्टेंट इक्वेशन. vy और t के बीच में रिलेशन, फोर्थ इक्वेशन. As far as trajectory equation is concerned, equation of trajectory means what? A equation which gives the relation between x and y coordinate. मतलब मुझे जो रिलेशन चाहिए वो 2 ही वेरिएबल चाहिए मेरे को. मेरे पूरे इक्वेशन में सॉरी, सिर्फ x और y ही वेरिएबल होने चाहिए. इन द एंटायर इक्वेशन
the only two variables that should be present are x and y. मतलब जो इक्वेशन हमको x और y के बीच में रिलेशन देता है, that equation is known as equation of trajectory. Herein, equation of trajectory of a projectile. तो देखिए, सोचिए आप शांत दिमाग से, how will you obtain the equation of, मतलब how will you obtain the equation which is showing the relation between x and y? ये तो बात निश्चित है कि आपको यही दोनों इक्वेशन यूज करना है, लेकिन इसमें x और t है और इसमें y और t है. शांत दिमाग से सोचोगे तो आपको आइडिया आएगा, सर अगर हम ये y को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से t को सब्जेक्ट करके उस t की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे तो हमको x और y के बीच में रिलेशन मिल जाएगा. मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ से t को सब्जेक्ट बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, तो t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x अपॉन v0 cos थीटा 0 होगा, राइट. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, v0 sin थीटा 0 इंटू t की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन v0 cos थीटा 0, बीच में आएगा माइनस की साइन, माइनस 1/2 g इंटू टी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x upon v0 cos theta 0. Now look in this particular equation. Which are the two variables that you are getting? It's y and x. मतलब x और y के बीच में रिलेशन मिल गया. This is nothing but the equation of trajectory of a projectile. लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे, थोड़ा अच्छा दिखाएंगे हम इसको. तो देखिए v0 कैंसिल हो जाएगा, sin theta upon cos theta, you know it very well, it's tan theta. So tan theta 0 इंटू एक्स माइनस, बीच में देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ जो कांस्टेंट चीज है ना उसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूं. मतलब ये g एक कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2 इज आल्सो कांस्टेंट, v0 का स्क्वायर अगेन इट कांस्टेंट, और cos स्क्वायर थीटा 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट. बाकी रहा सिर्फ x स्क्वायर. दिस इज द वे यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन, एंड this is the equation of trajectory, standard form of equation of trajectory of a projectile. अब देखिए इस पे कमेंट करना है, मैंने पहले ही बोला आपको, we have to prove that this is the equation, मतलब this equation is similar to the equation of parabola. हाँ ये सिमिलर है. देखिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को फ्यूचर में सिखाया जाएगा, लेकिन मैं जनरल बातें बोल रहा हूँ. नॉर्मली द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय y is equal to ax minus bx square. भाई ax minus bx square is a form of equation of parabola. It is one of the equation of parabola, standard equation of parabola. तो अब देखिए जहां पे a और b कांस्टेंट होता है, you can see this both equations are similar to each other, wherein we get the value of a as tan theta 0 and b as this entire bracket. मतलब आप निश्चित रूप से बोल सकते हो कि सर ये तो इसके जैसा है और ये वाला इक्वेशन तो पैराबोला का इक्वेशन है. तो आप बोल सकते हो कि दी पाथ टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर. मैंने बोला क्यों ऐसा बोलना चाहिए, होप सो विल गेट, मतलब होप सो यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, राइट. फिर से एक बार, ये वाला इक्वेशन पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन y is equal to ax minus bx square जैसा है. That's why we can say the path that is taken by the projectile is parabolic in nature. शायद ऐसा भी प्रश्न पूछ ले आपको, prove that the path taken by the projectile is parabolic. आंसर सेम रहेगा, राइट. फटाफट से, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, लिखना क्या है वो वहां पे लिखा हुआ है, राइट. सो taking you towards that screen. Okay, you can see over here what I have written is define projectile motion and obtain the equation of trajectory or path of a projectile. हर बार मैं तो नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोलता हूं कि आप आदत, मतलब you do right each and every time whenever the projectile motions question is asked from here till here. ये चार, मतलब ये दो, मतलब कितना 5 मिनट भी नहीं लगेगी आपको, not even to 5 minutes. It will just take 3 minutes to write it down very fastly, right. तो हर बार आपको ऐसा तो लिखना ही है, definition,
देन एज स्टूडेंट फिगर कंसिडर जो मैंने अभी आपको बोल दिया है। फिर एक्चुअल में ट्रेजेक्ट्री का कंटेंट यहाँ से शुरू होके यहाँ तक खत्म हो जाता है, राइट। दिस इज नॉर्मली आस्क्ड इन 3 मार्क्स। हाँ, ये फेमस क्वेश्चन है, बी केयरफुल। ऐसा नहीं होता है कि भाई मतलब कोई भी कभी भी कुछ भी पूछ ले। ये 3 क्वेश्चन में से एक तो निश्चित रूप से आएगा। कौन सा आएगा दैट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फैकल्टी हु इज टेकिंग आउट द पेपर, राइट। चलिए, नोट इट डाउन वेरी फास्टली। Okay, so now the next question number 2. Obtain the equation for time taken to achieve maximum height and also derive that maximum height that is already achieved. अभी इसके लिए मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। I have to make you understand about the entire concept in detail. तो मैं क्या करूंगा, आप देखिए शांति से। We know now I won't be talking too much about the steps you are supposed to write down again and again in each and every question, वो मैंने समझा दिया आपको, राइट। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आप जानते हैं कुछ ऐसा सीन होता है भाई, राइट। ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका जाता है, इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है भाई उसको, और आप देख सकते हो कि उसके 2 कंपोनेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये वाला और ये वाला, राइट। लेट अस से दिस इज v0, this is theta 0, so you are knowing this is v0 cos theta 0 and this is v0 sin theta 0। ध्यान से फोकस करना मैं क्या लिख रहा हूं अभी, ओके। सो या definitely this is x, this origin and this is y। now what happens, if you will focus it very carefully, you will observe that the particle is going like this way from a certain point, after a certain point it is coming back, that point you can see this is such kind of point मतलब which is having the maximum height। मान लीजिए पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A, राइट। बी केयरफुल, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, और मान लीजिए ये जो यहाँ पे आ जाता है वो पॉइंट B बोल देता है भाई। अभी जो ये A वाला पॉइंट है ना, दैट्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। हियर इन इफ यू विल मेजर दिस y कोऑर्डिनेट, मतलब हाइट मींस y कोऑर्डिनेट, बेसिकली हाइट इज डिनोटेड बाय y कोऑर्डिनेट। सो ये वाली जो हाइट है ना उसको हम h बोलेंगे। h मीन्स मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, देखिए जैसे मैंने बोला था, जब आप आगे जाते जाएंगे ना, मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और अब मैंने आपको पूछ लिया व्हाट इज वेलोसिटी ओवर दिस पॉइंट, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। अभी इसके 2 कंपोनेंट्स गिरेंगे, ये वाला और ये वाला, फील कर सकते हो शायद आप, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू आर हैविंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दिस इज द horizontal component which will always remain same। I have talked of this thing। ये वाला कंपोनेंट हर बार v0 cos theta 0 ही होगा। हाँ, ये पहले बड़ा था, देख सकते हो आप, पहले कितना बड़ा था, इनिशियली v0 sin theta 0 इतना था। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ये वाला छोटा होता जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे ये छोटा हो गया, मतलब इसकी वैल्यू v0 sin theta 0 जितनी नहीं है, थोड़ी कम है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे v0 sin theta 0 की वैल्यू 10 थी अगर, तो आगे जाके मतलब 9 होगी शायद, कि कोई जगह पे 7.5 हो जाएगी, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे आओगे तो और छोटी हो जाएगी ये भाई कंपोनेंट। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मानेगा भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज सेम, v0 cos theta 0 ओनली। एक बार ऐसा आएगा एट पॉइंट ए, यू कैन सी हियर इन भाई ये वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। कौन सा कंपोनेंट नहीं रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को हमने क्या बोला था, यहाँ पे v0 y था, जैसे जैसे आगे जाते थे हम लोग बोलते थे इट इज vy, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t, राइट। उसकी बातें चल रही है। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे एट पॉइंट a, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल गेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, it will become 0 in short। तो कोई बोलेगा सर क्या यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हाँ होगा, it will be the same, the same size। हालांकि मैंने यहाँ पे कम ड्रॉ करा है लेकिन जगह नहीं थी इसलिए, बट आप हर एक जगह पे वही वैल्यू मानना,
v0 cos theta 0, v0 cos theta 0, any point horizontal component always v0 cos theta 0, राइट। तो एक चीज मालूम पड़ी क्या, कि जब ये ऊपर जाता है, जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, तो वहां पे उसका y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो बस यही लॉजिक लगाना है। कैसे, अगर आपको ये समझना, मैं एक और चीज समझा सकता हूँ। कैसे भाई, आप अगर कोई भी चीज को आप ऐसे ऊपर फेंकोगे, कोई इंक्लाइन मोशन की बातें नहीं कर रहा हूँ, हम ऐसे फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल ही जाएगा। बट इफ वी आर थ्रोइंग, मतलब लाइक दिस वे, ऊपर फेंकोगे तो फिर वो क्या करेगा, वो ऊपर जाके रुक जाएगा, एक मतलब पल भर के लिए रुक जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, और फिर वापस आएगा। हाउ विल यू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट? At that point the velocity becomes 0, and that is the technique eventually. Here also the same thing is that, but the y component of velocity becomes 0 at this particular point, because in the case of projectile motion, horizontal velocity is always there and is always constant at each and every point. चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है मेरे को। अच्छा, तो यही आपको ढूंढना है, मतलब पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा, that is time taken to achieve the maximum height. Again फटाफट से फिर से एक बार लिख देता हूं चारों के चारों इक्वेशंस। x is equal to, the very first equation was v0 cos theta 0 into t. The second equation y is equal to v0 sin theta 0 into t minus 1/2 gt square. आप देख सकते हो बहुत आसान है। vx is equal to v0 cos theta 0 which will be always रिमेन कांस्टेंट, v0 sin थीटा 0 माइनस gt। ये चार इक्वेशंस थे, इसकी बजाय तो आप कर ही नहीं सकते कुछ। तो फर्स्ट पोर्शन, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। तो वो ढूंढने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने, क्या सीखा कि सर वहां पे vy 0 हो जाता है, तो vy को पकड़िए, ये vy के इक्वेशन में पुट t इज इक्वल टू tm, पुट t इज इक्वल टू tm। भाई सर t इज इक्वल टू tm, अरे अपने को टाइम तो ढूंढना है ना, तो हम सिर्फ प्रिसाइसली बोल देते हैं, लेट t be tm, tm मींस टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। पुट t इज इक्वल टू tm एंड vy इज इक्वल टू 0 इन दिस फोर्थ इक्वेशन। रखिए, क्या मिलेगा देखिए, 0 इक्वल टू v0 sin थीटा 0 माइनस g इंटू tm। बहुत सिंपल, देख सकते हो आप, मैंने कुछ नया नहीं करा, मतलब कुछ अफलातुन नहीं करा कुछ। इसको इस तरफ ले लो, gtm is equal to v0 sin theta 0. So what is the equation of time taken to achieve maximum height? v0 sin theta 0 upon g. Very easy. Fifth equation, because these are the four equations. Very easy. So ये पहला पोर्शन है, time taken to achieve maximum height. कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, राइट। एक और चीज बोलूंगा लेकिन खत्म करने के बाद, ऑल्सो डिराइव द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब ये कितना ऊंचा गया वो भी ढूंढ के दिखाओ। अरे क्या रे, कुछ नहीं, उसको ऊपर पहुंचने में कितना समय लगा, tm जितना, तो t की बजाय tm लिख दो। और ये क्या इंडिकेट करता है, विच इज दिस कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। सो पुट, यू आर सपोज टू यूज दिस y कोऑर्डिनेट वाला इक्वेशन, मतलब दूसरे वाले इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू h रख दीजिए, राइट सर, y इज इक्वल टू h। अरे अपने को h ढूंढना है ना, इसलिए, और t जो आ रहा है वेरिएबल, उसकी बजाय t इज इक्वल टू tm रख दीजिए, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। होप सो आप शांति से समझ रहे हो अच्छे से। सो नाउ कीप द वैल्यू, y इज इक्वल टू x रख दूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, v0 sin थीटा 0 इंटू t इज इक्वल टू tm की वैल्यू क्या है, v0 sin थीटा 0 अपॉन g, ओ माइनस 1/2 g इंटू टी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, v0 sin थीटा 0 डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 0 और g स्क्वायर, एक तो g उड़ जाएगा, तो v0 इंटू v0 स्क्वायर sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा 0, सो ऐसा होगा v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 0 अपॉन g पहले टर्म, माइनस v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g, 1 माइनस 1/2, देख सकते हो आप, 1 माइनस 1/2 ही है ना, v0 स्क्वायर इसमें भी है, sin स्क्वायर भी है, g भी है, मतलब ये 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, so we'll get the answer as h is equal to v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। बहुत सिंपल है भाई, राइट। This is the second important question. So far we have seen three questions, but this is second important question. First we have already seen
in the form of trajectory. Hope so it is very clear. एक चीज जो एक्स्ट्रा बोलने वाला था मैं, वो देखिए आप फिर से एक बार समझाता हूं मैं. एग्जैक्टली इसके सामने वाला पॉइंट, मतलब यूं आप एक्सटेंड करोगे ना ये वाला यहाँ पे, एग्जैक्टली ट्रेजेक्टरी पे एग्जैक्ट सामने वाला पॉइंट, मतलब ये आप आईना मान लो, इसके बाजू वाला, मतलब सामने वाला, सॉरी. तो यहाँ पे भी वेलोसिटी होगी, हाँ होगी, क्यों नहीं होगी रे. आप टेंजेंट ही ड्रॉ करना है आपको पाथ पे, टेंजेंट ड्रॉ करके आप आसानी से ढूंढ सकते हो. लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर आप सोच रहे हो तो यार यहाँ पे मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सर कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन वर्टिकल कितना होगा भाई, जितना ऊपर था ना यहाँ पे एग्जैक्ट सामने, ऊपर जितना था उतना ही नीचे रहेगा. लेट मी मेक इट मोर क्लियर. इसके एग्जैक्ट सामने वाला पॉइंट देखिए, क्या ये पॉइंट है. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑलवेज सेम v0 cos थीटा 0, वर्टिकल में इतना था तो वर्टिकल पे उतना ही नीचे आएगा. अभी इन दोनों का रिजल्टेंट ढूंढोगे ना तो आप टेंशन नहीं मिलेगा आपको. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑन एनी, मतलब ऑन अ पर्टिकुलर पाथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कॉन्सेप्ट सीखा होगा आपने. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे ढूंढते थे हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करके. तो वही तो है, ये तो सिर्फ उसके दो कंपोनेंट्स है. होप सो इट इज क्रिस्टल क्लियर. अब आप सोचिए अपने शांत दिमाग से कि यहाँ पे क्या सीन होगा, राइट. थिंक एंड देन प्ले दी वीडियो अगेन. मैं पॉज करके फिर प्ले करना. देखिए आशा रखता हूं कि आपने ये सोचा होगा. बी मतलब ओ का एग्जैक्ट ओ की लाइन में है, तो ओ पे वेलोसिटी कितनी थी, ऊपर की तरफ v0, तो यहाँ पे नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ v0 sin थीटा 0, तो नीचे की तरफ v0 sin थीटा 0, और x में तो हर वक्त v0 cos थीटा 0 ही रहेगा. दैट्स हाउ यू कैन एनालाइज दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. मैंने आपको एनालिसिस सिखा दिया. और नेक्स्ट बात भी बोल देता हूं मैं आपको, ग्राउंड से शुरू करके फिर से ग्राउंड पे पहुंचे, वो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ना उसको रेंज आर बोलते हैं, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है. फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन फटाफट नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना रे, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा. ओके, सो वंस अगेन आई हैव रिटन द एंटायर क्वेश्चन. प्रोजेक्टाइल मोशन डेफिनेशन बताइए, फिर टाइम टेकन टू अचीव द मैक्सिमम हाइट एंड आल्सो डिराइव द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट h. मतलब टीएम और h दोनों का इक्वेशन डिराइव करना है. ये वाली प्रोसेस तो वही है जो हमने, मतलब हम कब से करते आ रहे हैं, सॉरी. वो h वाला पोर्शन में मैंने इंडिकेट किया, देखिए आप, और रेंज का भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, राइट. सो या नोट इट डाउन वेरी फास्टली. Okay, so now the last important question of this particular topic, and that is obtain the formula for the time of flight and the range r. Right? How to solve, how to understand this particular question. Look, we know it, when we are projecting a projectile from the origin, it will follow such kind of path. Initial velocity we are well aware of, its components also we are well aware of. ये सारी बातें एक ही है और बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है भाई. v0 cos theta 0, v0 sin theta 0, this being theta 0, yeah, this is y axis, this is origin, this is x axis, this we have shared as a, which is the point of maximum height, and this being point b. what do you mean by time of flight? आप जानते हो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, टेक ऑफ करके लैंड होने तक. तो आप देखिए टेक ऑफ करा O पॉइंट से और लैंड हो रहा है वो B पॉइंट से, मतलब O से शुरू करके B पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगता है, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. अपने पास चार इक्वेशंस पहले से रेडी है. x is equal to v0 cos theta 0 into t, this is the first equation. y is equal to, now also we know that v0 sin theta 0 into t minus 1/2 gt square. Secondly, we have, sorry, Vx, Vy, Vy also we are well aware of, V0 cos theta 0, and this being V0 sin theta 0. Very, very, very easy to understand. Right, now understand one thing. शांति से देख के बोलना, अपने मतलब स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि ये वाले पॉइंट में ये चारों में से कौन सी चीज जीरो होती है. थिंक. Okay. Hope so you have thought of why. Because any point which is on x-axis, its y coordinate is always 0. तो सिंपल है.
फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम डिनोट करेंगे टीएफ से, टीएफ ढूंढने के लिए आप इसी की मदद लीजिए. पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड t इज इक्वल टू टीएफ. मतलब हम रखेंगे t इज इक्वल टू टीएफ और y को 0 इन इक्वेशन नंबर 2, राइट. इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सॉर्ट आउट करिए फटाफट से. सो 0 इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 इंटू टी एफ, जो कि ढूंढना है अपने को, -1/2 जी टी एफ होल स्क्वायर. टेक दिस ओवर दिस साइड. सो 1/2 जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू v0 sin theta 0 into tf. One tf will get cancel out, so you will get tf as 2 will be going on the numerator, 2 v0 sin theta 0 upon g. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे v0 sin theta 0 तो ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है, that is time taken to achieve maximum height. It's tm. So sometimes you can also say like this way, it is twice tm, right? हालांकि हम फिलहाल इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे, लेकिन आप दिमाग में, मतलब दिमाग के कोई कोने पे आप याद रख सकते हो कि tf टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट ट्वाइस टाइम टेकन टू अचीव द मैक्सिमम हाइट. दे कैन समटाइम्स आल्सो आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन किसी भी प्रकार का होगा भाई, लेकिन इससे बाहर का नहीं होगा कुछ. सेकेंड थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? भाई रेंज का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है वो, मतलब शुरू ग्राउंड से शुरू करके फिर से ग्राउंड पे टकराने के लिए, मतलब टकराने तक. सो दैट इज नथिंग बट रेंज. इजी टू अंडरस्टैंड. What is this? Which coordinate is this? X coordinate or Y coordinate? Definitely this is a X coordinate. तो इक्वेशन 1 के अंदर, पहले इक्वेशन के अंदर x की बजाय आप r रख दीजिए क्योंकि रेंज और वहां पे टाइम भी आ रहा है, तो t को tf लिख दीजिए बिकॉज टाइम टेकन टू अचीव, सॉरी टाइम यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो t इज इक्वल टू tf और x इज इक्वल टू r. यू विल गेट द आंसर. सो x की बजाय r लिख दूंगा तो v0 cos theta 0 into t is equal to tf. tf रखूंगा लेकिन tf की वैल्यू मेरे को मालूम है, 2v0 sin theta 0 upon g. v0 into v0 is v0 square. देखिए 2 times sin theta 0, sorry sin theta 0 into cos theta 0 whole divided by g. भाई ये मैथमेटिक्स का फंडा है. 2 times sin into cos, 2 times sin into cos is sin twice the angle, sin double the angle, sin 2 theta 0 upon g. This is nothing but the formula of the range. As simple as that. Fill up this thing. Very easy to understand. Right? ये सारी बातें वहां पे लिखी है. एक और एक्स्ट्रा बात सिखा रहा हूं मैं आपको. They can sometimes also ask you find out R max. मतलब मैक्सिमम रेंज लानी है अगर, मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी आ सकती है, तो देखिए आप रेंज की फॉर्मूला क्या मिली अपने को. लुक फोकस, हाँ वेरी केयरफुली. हमको क्या मिला, रेंज इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 0 अपॉन जी. देखिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आवश्यक है. इसमें से r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन जी, ये g तो कांस्टेंट है, v0 भी फिलहाल हम कांस्टेंट रखते हैं, तो मतलब सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हो. नाउ इन ऑर्डर टू मेक दिस मैक्सिमम, r मैक्स कब मिलता है, जब ये सारी वैल्यू मैक्सिमम होती है. अब साइन में मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, दैट्स 1. सो साइन ऑफ एंगल, अपने पास एंगल कितना है 2 थीटा 0, साइन ऑफ एंगल मस्ट बी 1. अब आप सोचिए साइन में 1 कब आता है, 90 डिग्री में, साइन 90 इज 1. सो वी कैन से 2 थीटा 0 इज 90, सो थीटा 0 विल बी 45. मतलब आप कितनी डिग्री पे फेंकोगे तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट्स 45 डिग्री. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन VSQ. सो अगर ये 1 बन जाए तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, v0 स्क्वायर अपॉन g which is nothing but the maximum range. Sometimes they are asking such kind of question also that maximum range depends upon which factor. g तो कांस्टेंट है, हालांकि v0 भी कांस्टेंट, लेकिन हर बार मतलब अलग अलग वेलोसिटी से आप फेंक सकते हो. सो कैन से R max only depends upon the initial velocity. In fact, it depends upon square of the initial velocity. Right? Very easy to understand. ये सारा फंडा है जो मैंने समझाया आपको. डेफिनेटली वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, आई एम डैम श्योर द कंटेंट
might have been perfectly clear, right? Hoping so. हाँ, तो क्या लिखना है वो उस तरफ लिखा है, फटाफट से उस स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ मैं. Okay, so define projectile motion, obtain the formula for total time of flight TF, also obtain the formula for range and using it obtain the formula for maximum range. सारी की सारी बातें एक ही क्वेश्चन में कर दी है मैंने. जैसा जब पूछा जाए उसी तरीके से आपको आंसर देना है, राइट? आई एम टेकिंग इट लिटिल बिट डाउनवर्ड. देखिए कैसे लिखना है आपको. सो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 इक्वेशन तक पहुँचना है. आखिरी वाली लाइन मैक्सिमम रेंज की कौन सी है? ये वाली. इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 6 दैट r इज इक्वल टू r max व्हेन sin 2 थीटा 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज थीटा 0 इज इक्वल टू 45. मैंने समझाया आपको, इसलिए r max की वैल्यू v0 स्क्वायर अपॉन g. दैट्स एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन इन डिटेल, राइट? फिर से एक बार फोकस कर रहा हूं, देख लीजिए आप. ओके, तो ये वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं. एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको. ये पूरी थियोरी आपने अच्छे से पढ़ ली है, सारी की सारी फॉर्मूला आपने अच्छे से नोट कर लिए. देन इन योर टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर देयर इज वन इलस्ट्रेशन नंबर 4.9. वो आप अपने आप करने की कोशिश करिए और उसका जो आंसर आ रहा है मेरे को भेजिए भाई, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भाई क्या आंसर आ रहा है आपका. 3 आंसर आएंगे ABC में, वो क्या आपको आंसर आ रहा है अपने आप करना. अंदर तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, अपने आप करोगे तभी आप समझ पाओगे कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है. या टिल देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, यू विल डेफिनेटली गेट more and more content, quality content very soon. Bye bye, take care.